الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے آج کے درس میں، جو کہ درس نمبر 6 ہے، ہم اسم کے بارے میں کنٹینیو کریں گے، اور اسم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کے کیا اقسام ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا شروع، اور اس کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اعراب جو ہے یہ عربی کا خاصہ ہے، عربی گرامر کا خاصہ ہے، اور پورے عربی گرامر میں آپ اس اعراب کے چیپٹر کو پائیں گے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنی پڑیں گی، اس لیے آج کا درس بھی اعراب کے سلسلے میں ہی ہوگا۔ جہاں تک ہماری ابھی تک جو یعنی لیکچرز ہے، یا ہمارے ابھی تک جو دروس ہے، اس میں ہم نے یہ جانا کہ اسم جو کہ عربی کلمے میں یا عربی کے گرامر میں 3 امپورٹنٹ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے اسم کو اٹھایا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اسم جو ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس اسم کا جنس کیا ہے، یعنی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس اسم کی عدد کیا ہے، یعنی یہ اسم واحد ہے، ایک ہے، مثنیٰ جس کو ہم 2 کہتے ہیں، یا 2 سے زائد ہے جس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اسم ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وسعت کیا ہے، یہ نکرہ ہے یعنی عام ہے، کامن ہے، یا یہ معرفہ ہے جس کو ہم اسپیسیفک کہتے ہیں یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم کی جو چوتھی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے، وہ ہے اسم کی اعرابی حالت۔ اور اعرابی حالت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے ابھی تک یہ جانا، اعراب کہتے ہیں اسم کے اس جملے میں استعمال کو، یعنی جب بھی کسی جگہ آپ اسم کو دیکھیں گے، اس جملے میں اسم کی کیا کنڈیشن ہے، کیسے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم ایز اے یعنی یہ فاعل یوز ہوتا ہے یا یہ مفعول یوز ہوتا ہے، اس کو ہم اعرابی حالت کہتے ہیں۔ یا عام زبان میں اعرابی حالت کہتے ہیں کہ اسم کی اپنی معنی کو تبدیل کیے بغیر اس کے الگ شکلوں میں ظاہر کرنا، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کتاب بن بھی آ سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کتاب ہے۔ کتاب بن بھی آ سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کتاب ہے۔ کتاب بن بھی آ سکتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی کتاب ہے۔ حالانکہ پہلے میں آخر میں 2 پیش ہے، دوسرے کتاب بن میں آخر میں 2 زبر ہے، اور تیسرے کتاب بن میں آخر میں 2 زیر ہے۔ اسی طرح مسلمون، اس کا ترجمہ ہو گیا تمام مسلمان، اور مسلمین اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تمام مسلمان۔ تو مونا ہے، مینا ہے، ان ہے، ان ہے، ان ہے۔ اسی طرح الکتاب، الکتابہ، الکتابی، یہ جو ڈفرنٹ طریقے ہیں اسم کو لکھنے کے، اس کو ہم کہتے ہیں اعرابی حالت۔ یعنی مختلف شکلیں اسم کی ہوتی ہیں، مگر اسم کا ان شکلوں میں ہونے کے باوجود بھی اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ اعراب جو ہے یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو آخر میں ہمارے پاس حرکت تبدیل ہوگی، اس کو ہم بولتے ہیں اعراب یعنی حرکت، یعنی آخر میں یا 2 پیش کے بجائے 2 زبر آئے، 2 زبر کے بجائے 2 زیر آئے، یا پیش کے بجائے زبر آئے، زبر کے بجائے زیر آئے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ اور دوسرا ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف کو ہم بے نون گروپ بھی کہتے ہیں، یعنی نون گروپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آخر میں نون کی تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں آخر میں جو حرف ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتنا ہم نے ابھی تک پچھلے درس میں یعنی درس نمبر 5 میں جانا۔ آج ہم اسی اعراب کو اور مستقل کریں گے،
देखिए यहाँ पर ये जो आज का टॉपिक है इससे हम शुरू करेंगे कि आराबी शक्ल के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। यानी आराबी शक्ल यानी इसम की जो शक्ल होती है आराब के हिसाब से, उस हिसाब से इसम की कितनी किस्में हैं। तो आराबी शक्ल में जब तब्दीली लाते हैं हम तो उसके लिहाज से इसम की दो बड़ी किस्में हैं। एक है मबनी और दूसरा है मुअर्रब। मबनी इसम किसको कहते हैं? मबनी इसम ऐसे इसम को कहते हैं जो तीनों आराबी हालतों में एक ही शक्ल रखते हों। मिसाल के तौर पर उसमें हमारे पास रफा, नस्ब, जर, क्योंकि ये तीन आराबी हालत है। रफा कहते हैं अगर हम बिल हर्फ की बात करेंगे तो ऊना साउंड आएगी, और अगर हम बिल हरकत की बात करेंगे तो या तो पेश होगा या दो पेश होगा। उसको हमने नाम दिया था ये रफा इसम है या मरफू इसम है। उसके बाद हमने नस्ब की बात कही थी, उसमें हमने बताया था ईना अगर साउंड आ जाए नून ग्रुप में, या अगर हम हरकत वाले कंडीशन में देखेंगे तो जबर या दो जबर आएगा, उसको हमने बताया था इसको हम कहते हैं नस्ब, यानी उस इसम को हम मंसूब कहते हैं। और तीसरा हमने कहा था जरी हालत है, उसमें भी ईना साउंड आएगी, यानी उन हरूफ में जो नून वाले ग्रुप है, और वो हरूफ जिसमें आखिर में हरकत की तब्दीली आती है तो उसमें या तो जेर आएगी या फिर जबर ही आएगी, जो हमने अभी तक बताया। तो इस सिलसिले में अभी ये बात हमें पता चल गई कि अरबी शक्ल के लिहाज से हमारे पास इसम की दो किस्में हैं। एक ऐसा इसम जिसको हम मबनी कहते हैं। मबनी ऐसे इसम को कहते हैं जो तीन ही यानी अरबी हालात में, चाहे रफा हो, नस्ब हो या जर हो, उसकी शक्ल एक ही जैसी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास तीन इसम दिए गए हैं। एक इसम है मूसा। मूसा अगर आप अरबी हालत में रफा में लिखेंगे तो ये मूसा ऐसे ही लिखा जाएगा। जब आप नस्ब की हालत में लिखेंगे तो मूसा मूसा ही लिखा जाएगा। जब आप जर की हालत में लिखेंगे तो उस वक्त भी मूसा जो है, ये बहस है कि मूसा इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह ईसा, ये भी एक इसम है, और इसको लिखने का तरीका रफा नस्ब जर में ऐसे ही होगा, ईसा। इसी तरह कुबरा, कुबरा जो है ये रफा नस्ब जर तीनों कंडीशन में कुबरा ही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा हमेशा रफा या नस्ब या जर होगा। याद रखिएगा मूसा कभी रफा भी हो सकता है, कभी कभी नस्ब भी हो सकता है, कभी जर भी हो सकता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें उस वक्त का कंडीशन बताएगा, ठीक है, जब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मगर तीनों शक्लें उसकी एक ही होंगी। इन्हें रफा में भी मूसा ही लिखा जाएगा, नस्ब में भी मूसा लिखा जाएगा, जर में भी मूसा लिखा जाएगा। इसी तरह ईसा, इसी तरह कुबरा। ऐसे इसम जिनकी शक्लें तीनों अरबी कंडीशन में, चाहे वो रफा हो, नस्ब हो या जर हो, तीनों कंडीशन में एक ही शक्ल हो, ऐसे अस्मा को या ऐसे इसम को मबनी इसम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा इसम है या दूसरा ऐसे इसम है जिसको मुअर्रब कहते हैं। ये ऐसा इसम है जो अरबी हालत में अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अल किताबु है, ये हमारे पास रफा में है। उसके बाद अल किताबा, शक्ल तब्दील हो गई, ये नस्ब आ गया। और अल किताबी, शक्ल तब्दील हो गई, ये जर में आ गया। तो मुअर्रब कहते हैं जब वो अलग अलग हमारे पास आराबी हालात में होगा, चाहे रफा में होगा, नस्ब में होगा या जर में होगा, तीनों हालतों में उसकी शक्लें तब्दील होंगी, उसको कहते हैं मुअर्रब। और ऐसे इसम जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल रखेगा उसको हम मबनी इसम कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मुनीर साहब? इसमें कोई सवाल तो नहीं है, आप पूछ सकते हैं, या शौकत साहब है? नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो यानी ये यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एराबी हालत के लिहाज से हमारे पास चूंकि तीन कंडीशन है, रफा नस्ब जर, इसको हमने पिछले दरस में कंटिन्यू किया था। मगर जब आप इसम को लिखेंगे ना, अगर वो मबनी इसम होगा, जैसा कि आपके सामने मूसा है, चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो, तीनों कंडीशन में मूसा ही लिखा जाएगा। इसमें शक्ल की यानी शक्ल की तब्दीली नहीं होगी।
मगर मूसा रफा भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त इस जुमले में मूसा रफा है या नस्ब में लिखा हुआ है जर में? वो आपको उस वक्त का जुमला बताएगा, उस वक्त के कंडीशंस बताएंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे इसम जो तीनों कंडीशंस में, चाहे रफा हो, नस्ब हो, जर हो, एक ही शक्ल में होंगे, ऐसे अस्मा को हम मबनी अस्मा कहते हैं। जबकि ऐसे अस्मा जो अपनी शक्लें तब्दील करे, जब वो अलग अलग कंडीशन में हो, रफा में हो तो अलग शक्ल में हो, नस्ब में हो तो अलग शक्ल में हो, जर में हो तो अलग शक्ल में हो, ऐसे अस्मा को एराब की हालत से मुअर्रब अस्मा कहते हैं। अब मुअर्रब में भी दो किस्में हैं, एक है मुनसरिफ यानी मुअर्रब मुनसरिफ, और दूसरा है मुअर्रब गैर मुनसरिफ। मुअर्रब मुनसरिफ क्या होता है? मुअर्रब मुनसरिफ का मतलब होता है कि रफा में अलग हो, नस्ब में अलग हो, जर में अलग हो, तीन शक्लें, ठीक है। और गैर मुनसरिफ में रफा में अलग हो मगर नस्ब और जर में एक जैसे लगे, हालांकि वो नस्ब और जल में हो सकता है मगर शक्लें एक जैसी होंगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आराम से, अगले वाले आने वाले लेक्चर इन स्लाइड्स में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मबनी अस्मा। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया है, मबनी अस्मा ऐसे अस्मा है जो रफा नस्ब जर में एक ही शक्ल में हो। और आगे इंशाल्लाह जितने भी आप दुरूस आएंगे उसमें हम रफा को रेड कलर से डिनोट करेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जब भी आप ऐसे देखेंगे तो आप समझिएगा कि ये रफा में है। नस्ब को हम ग्रीन कलर में डेजिग्नेट करेंगे, और जब भी आप नस्ब देखेंगे तो एरो नीचे की तरफ होगा। और जर को भी हम यानी यानी पर्पल कलर है, इससे हम डिनोट करेंगे। और इसका जो एरो का जो ये शक्ल होगा वो इस तरह लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये पूरे अब जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, जब भी आप रफा वाला इसम देखेंगे तो इसमें होगा, नस्ब इस तरह होगा और जर इस तरह होगा। अब मबनी अस्मा क्या है? मबनी अस्मा में तीनों जो यानी शक्लें हैं, यानी तीनों रफा में, नस्ब में या जर है, तीनों कंडीशंस में इसम की एक ही शक्ल होगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मूसा रफा में भी मूसा है, नस्ब में भी मूसा लिखा जाएगा, जर में भी मूसा लिखा जाएगा। ईसा रफा में, नस्ब में, जर में एक शक्ल में होगा। यहया रफा में, नस्ब में, जर में एक शक्ल में होगा। कुबरा रफा नस्ब जर में एक शक्ल में होगा। हुस्ना रफा नस्ब जर एक शक्ल में होगा। बुशरा रफा नस्ब जर एक शक्ल में होगा। तो ऐसे अस्मा जिनमें कंडीशंस तो तीन हो, इन्हें वो रफा में भी हो सकता है, नस्ब में भी, जर में भी, क्योंकि ये तीनों हमारे पास एराब की कंडीशन है, मगर तीनों कंडीशंस में वो एक ही शक्ल पे हो, ऐसे अस्मा को मबनी अस्मा कहते हैं। मबनी अस्मा के बाद अब हम मुअर्रब अस्मा पे आएंगे, और मुअर्रब अस्मा में हमारे पास अब है मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा ऐसे इसम जो तीन आराबी हालत में अपनी शक्लें तब्दील करते हैं, यानी तीनों हालतों में वो अलग अलग होते हैं। रफा में अलग शक्ल होगी, नस्ब में अलग शक्ल होगी, जर में अलग शक्ल होगी। और आपको याद रखना चाहिए कि 85% जो अरबी के अल्फाज हैं, अरबी के जो अस्मा है, 85% वो वाहिद इसमें मुनसरिफ है, यानी वो मुनसरिफ इसम होंगे। मुनसरिफ मतलब वो तीन हालात में अलग अलग शक्लों में होंगे। रफा में अलग होंगे, नस्ब में अलग होंगे, और जब जर में अलग होंगे। तनवीन वाले तमाम इसम जो है वो मुनसरिफ है सिवाय जमा सालिम मुअन्नस के। यहाँ पर आप देखें मिसालें। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास मिसाल है किताबुन। रफा में जब लिखेंगे तो किताबुन लिखेंगे। अगर किताबुन आप देखेंगे किताबन होगा तो याद रखिएगा ये इस वक्त रफा में इसम नहीं बल्कि ये नस्ब में है। और अगर यही किताबन के बजाय किताबिल लिखा होगा तो आप समझिएगा कि ये इसम इस वक्त एराबी हालात में हालती जर में है, ठीक है। तो ऐसे अस्मा जो तीन किस्मों में, आराबी हालात के तीन किस्मों में अलग अलग शक्ल में होंगे, इनको हम मुअर्रब अस्मा कहते हैं। और मुअर्रब में भी कौन सा इसम? इसमें मुनसरिफ। मुनसरिफ क्योंकि मुअर्रब में मुनसरिफ भी है, गैर मुनसरिफ भी है। और मुनसरिफ किसको कहते हैं? जो तीन
एराबी हालत में 3 शक्लें रखते हो, अलग अलग शक्लें रखते हो। और याद रखिएगा, शक्लें तो 3 हैं मगर तर्जुमा एक ही होगा। किताबुन का तर्जुमा किताब है, किताबन का तर्जुमा भी किताब है, और किताब बिन का तर्जुमा भी किताब है। क्योंकि एराब कहते हैं तर्जुमा तब्दील करे बगैर उसकी शक्लें तब्दील करना, इसम की शक्लें तब्दील करना, इसको हम कहते हैं एराब। क्लियर हो गया? शौकत साहब, आपके सामने एक क्लियर बातें हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जी मजीद जी जरूरत तो सर। नहीं? अच्छा। क्योंकि देखिए आज का टॉपिक जो है ना, ये पिछले टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब ये जो लेक्चर नंबर 5 देखेंगे उसके साथ ये टॉपिक आज का जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एराब बताया था। अभी हम उसी एराब को कंटिन्यू कर रहे हैं कि एराब की 3 किस्में हैं, रफा, नस्ब और जर। और अगर ये तीनों कंडीशन में एक जैसी शक्ल रखेंगे तो उस वक्त उस एराब को हम मबनी एराब कहेंगे, और मबनी इसम कहेंगे, सॉरी मबनी इसम। मबनी इसम में तीनों रफा, नस्ब, जर में जो हमारे पास इसम होगा एक ही शक्ल पे होगा। मैंने आपको मिसाल दी मूसा, ईसा। और अगर हम उसके बाद दूसरी किस्म जो मुअर्रब ही है, मुअर्रब में भी हमने सबसे पहले मुनसरिफ उठाया। मुनसरिफ हमारे पास जितने भी अस्मा है 85% जो अरबी ग्रामर में इसम है वो मुअर्रब है। और मुअर्रब में हमने ये जाना कि ये 3 कंडीशन में, यानी रफा, नस्ब, जर में अलग अलग शक्लों पे होंगे। कलमुन रफा, कलमन नस्ब, कलमिन जर। अच्छा शवकत साहब ये बताए, ये नस्ब में जब हमने किताब बन लिखा, ये अलिफ कहाँ से हमने लाया? हमने किताब उन पे तो अलिफ नहीं था, बा के साथ। किताब इन पे तो अलिफ नहीं था। आप ये बता सकते हैं कैसे है? अगर तनवीर साहब भी बताएं, यानी दूसरे जो हमारे साथी हैं, अगर तनवीर साहब, ये शौकत साहब नहीं बताना चाहें, या मुनीर साहब, आप इसमें बता जी सकते हैं जी। हाँ, हमने ये जब अराब का दूसरा कंडीशन पढ़ा था, एक तो हरकती अराब बताया था और दूसरा हमने बोला था जब हम चेंज करेंगे अलिफ हर्फ। वाव, हाँ हरफ, जी जी। वाव या अलिफ चेंज करेंगे या में, सही बात। तो उस यहां वजह पर से। यहां पर देखिए ना, यहां पर आपको याद रखना है, जब भी आप दो जबर लाएंगे ना लास्ट में, ये आप कानून याद रखिएगा हमेशा के लिए। जब भी आप दो जबर लाएंगे लास्ट में, दो पेश और दो जेर में नहीं, दो जबर, तो उस पे आपको अलिफ जोड़ना पड़ेगा। ये कायदा है ये ग्रामर का भी और तजवीद का भी। जैसे किताबुन दो पेश था, मगर जब हमने दो जबर लाया ना नस्ब की हालत में, दो जबर लाने के बाद अलिफ जुड़ जाता है। ये अलिफ जो है सिर्फ एक सूरत में नहीं जुड़ता, अगर हमारे पास दो जबर गोलता पे हो। जैसे हुजैफतुन को बनाएंगे हुजैफतन, फातिमतुन फातिमतन, दो पेश, यानी दो पेश को हमने दो जबर बनाया, मगर गोलता है। गोलता जब आखिर में होगा उस वक्त अलिफ ऐड नहीं होगा। उसके बजाय जितने भी बाकी कंडीशन आप देखेंगे, दो जबर देखेंगे तो अलिफ साथ में होगा। ये ग्रामर के साथ, अरबिक ग्रामर में ये अलिफ जुड़ा जाता है, पढ़ा नहीं जाता मगर जुड़ा जाता है। जिस तरह बाकी जबानों में भी हम लिखते हैं ना, नॉलेज लिखते हैं। जब हम नॉलेज लिखते हैं तो के तो लिखते हैं ना, जो साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह अगर आप दो जबर लिखेंगे लास्ट में तो अलिफ साथ में रहता है, वो पढ़ा नहीं जाता सिर्फ दो जबर में। वो भी दो जबर उस सूरत में जब दो जबर आम कंडीशन में हो। अगर दो जबर गोल तापे हो उस वक्त अलिफ लास्ट में नहीं आता। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी। जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप देखें। एक हाँ जी, बताएं। एक एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने एरोज इसमें दिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है कि या हम खुद कर सकते हैं इसको? नहीं, ये आपकी मर्जी है, मगर चूंकि हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं और जो हमने पढ़ा है हम्म। उसमें उन्होंने ये जो एरो कंडीशन दिया है ना, क्योंकि आगे हम रफा, नस्ब, जर नहीं लिखेंगे। आगे जब आप नहीं, कुरान अगर मजीद का अगर आप कुरान मजीद का देखेंगे ना, ये हम जब कुरान मजीद को उठाएंगे, मैं आपको तर्जुमा करना सिखाऊंगा। उस वक्त ये हम्म, जो रफा में होगा ना इसम, वो इसी कलर में होगा, नस्ब में इसी में होगा, जर में इसी में होगा, और नीचे दिया गया होगा एरो, ताकि आप समझ लें। ये हमारी मतलब अपनी मर्जी है, आप इसके बजाय कोई दूसरा कर सकते। आप अगर हाइलाइटर यूज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट हाईलाइट हम्म। कर सकते हैं। ये तो बस सीखने और समझने की बात है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। क्योंकि इसमें जो नस्ब में एरो दिखा रहा है ना, वो नीचे की तरफ जाना चाहता है। हाँ। तो ये दिस एरो शुड हैव बीन विथ जार।
ٹھیک ہے، جر کا اراؤنڈ. وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، تو آپ کی چوائس ہے۔ مگر چونکہ ہم نے بتایا کہ جو ہم نے سلیبس ڈیوائز کیا ہے اس میں ہم نے نصب یعنی رفع اوپر، نصب نیچے، اور جر جو ہے وہ بیچ والا ہے، اس طرح یاد رکھتے ہیں، اوپر نیچے اور بیچ والا۔ اوپر کے ساتھ ہمیشہ نیچے آتا ہے نا، مطلب اس حساب سے کیا ہے، مگر کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ مگر اگر وہ ایگزامپلس ہم دیں گے، جو بک ہم نے کنسیڈر کی ہے اس کے لیے، اس میں ایسے ہی دیا گیا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، مگر یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں، آپ کی چوائس ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، جیسے ہمارے پاس ہے قلمن رفع میں، قلمن نصب میں، قلمین جر میں، اور 85% جو عربی گرامر ہے نا وہ ایسی ہوگا، انہیں رفع نصب جر میں وہ الگ الگ طریقے سے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ولدن، 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 بنتن، 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 رجولن، رجولان، رجولن۔ آپ دیکھیں نا، ہر چیز میں جب دو زبر ہم لگا رہے ہیں، الف ساتھ میں ایڈ ہو رہا ہے نصب میں۔ اسی طرح بائتن، 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 دارن، 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 یدن، 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 عینن، 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 مسجدن، مسجدن، مسجدن۔ اچھا منیر صاحب یہ بتائیے، مسجدن، 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 اس کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ معنی میں تو فرق نہیں ہے. معنی میں کوئی مسجد. فرق نہیں، یہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اسم تو اسم رہے گا نا۔ مگر اب جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے، اس وقت یہ ایز اے مفعول استعمال ہوا ہے، فاعل استعمال ہوا ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیسے استعمال ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اسی اعرابی کنڈیشن سے پائیں گے۔ کیونکہ عربی میں یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کی کافی امپورٹنس ہے۔ اسم تو اسم رہے گا، مسجد کا مسجدی نام رہے گا، مگر اس جملے میں یہ ایز کیا استعمال ہوا ہے یہ ہمیں اعراب بتائے گا، اور اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح نفسن، 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 تین الگ الگ یعنی حالات، تین الگ الگ کنڈیشن، ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں اسم معرب اور منصرف، یعنی منصرف، یعنی تینوں حالات میں یہ الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شائعن، 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 سوءن، سوءن، سوءن۔ دیکھیے گا جب بھی دو زبر ہم لگا رہے ہیں نا، الف ساتھ میں ہے۔ اب دیکھیں الف ساتھ میں نہیں ہوگا، جو میں آپ سے بتا رہا تھا، جنتن، جنتن، جنتن۔ جنتن میں دو زبر ہے مگر الف نہیں ہے، میں نے آپ کو وجہ بتائی، کیونکہ یہ گولتا ہے، گولتا جب ہوگا، دو زبر ہوگا، اس پہ الف کا ایڈیشن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح امرأتن، 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 مدینتن، 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 یہ رفع، یہ نصب، یہ جر، آیتن، آیتن، آیتن۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو معرب اسما ہوتے ہیں اس میں جو منصرف ہے، کیونکہ معرب میں دو قسمیں ہیں، معرب مطلب جو تبدیل ہوتے ہیں رفع میں، نصب میں، جر میں، اس میں جو منصرف ہے، جو سب سے زیادہ نمبر، سب سے زیادہ کوانٹیٹی ہمارے الفاظ کی ہے اسم کی پورے عربی گرامر میں، وہ یہ ہے کہ رفع، نصب، جر میں وہ الگ الگ طریقے سے لکھا جائے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس میں ہم نے جانا کہ جو نصب میں دو زبر آتا ہے اس کے ساتھ الف جڑا آتا ہے، مگر ایک صورت میں کہ جب آخر میں دو یعنی گولتا ہو، گولتا ہوگا تو دو زبر ہوگا، الف ساتھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس یعنی دوسری کنڈیشن ہے معرب کی، اور یہاں پر میں اپنی اس کو بند کر کے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں غیر منصرف اسما۔ غیر منصرف اسما ایسے اسم ہے جو صرف دو اعرابی حالات میں یا حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی حالت رفع اور حالت نصب میں، جبکہ حالت جر میں بھی ان کی شکل حالت نصب جیسی رہتی ہے۔ حالت رفع میں غیر منصرف اسما کے آخر میں صرف ایک پیش پائی جاتی ہے، اور یاد رکھیے گا غیر منصرف اسم حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے آدم، اس میں یاد رکھیے گا غیر منصرف میں دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں ہوتا، بلکہ ایک پیش، ایک زبر ہوتا ہے، اور جر کی حالت میں اس کی شکل نصب جیسی ہوتی ہے۔
हालांकि वो जर हो सकता है, वो हमारा जुमला बताएगा, मगर शक्ल के हिसाब से वो नस्ब के मुताबिक होगा। और अक्सर गैर मुनसरिफ अस्मा जो है ये इसमें अलम के है, इसमें अलम कहते हैं किसी के नाम की। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने है आदम, हजरत आदम का नाम अलैहिस्सलाम। रफा में आदमू, नस्ब में आदमा, और जर में आदमा, इसमें जेर नहीं आएगा। रफा में इब्राहिम, नस्ब में इब्राहिमा, और जर में इब्राहिमा। ठीक है, अब ये आप कंफ्यूज कभी हो सकते हैं कि इब्राहिमा नस्ब है या जर है। मैंने आपको बार बार बताया कि ये हमें जुमला बताएगा, उस वक्त के कंडीशन बताएंगे कि ये रफा में है यानी नस्ब में है या जर में। रफा तो क्लियर है। इस्माइलु, रफा, नस्ब जर में इस्माइला इस्माइला। इसहाकु, रफा में इसहाकु, और नस्ब और जर में इसहाका इसहाका। याकूबु, रफा में याकूबा याकूबा, नस्ब और जर में। इसराइलु, रफा में इसराइला इसराइला, नस्ब और जर में। यूसुफु, रफा में यूसुफा यूसुफा, नस्ब और जर में। तालूतु, रफा में तालूता तालूता, नस्ब और जर में। तो गैर मुनसरिफ अस्मा भी मुअर्रब अस्मा में है, यानी ऐसा इसम जो यानी अराबी हालत में जिसकी शक्ल तब्दील होती है, मगर तीन शक्लों के बजाय दो शक्लों में आता है। रफा में अलग होगा और नस्ब जर में एक जैसे दिखेगा, मगर नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। और ये भी हमने जाना कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं उसमें दो पेश दो जबर दो जेर नहीं, बल्कि पेश और जबर होता है, जेर नहीं आती। और ये भी जाना कि गैर मुनसरिफ अस्मा में ये जो अक्सर इसम है वो इसमें अलम है, यानी किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम। जैसा कि यहाँ पर आपने अक्सर और बेशतर पैगंबरों के नाम यहाँ पर देख लिए, और ये कुरान मजीद में तमाम अस्मा इस्तेमाल हुए हैं। तो आखिर में इन्हें एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आराब का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराब में ये हमने जाना कि इसम जो है उसमें वो जुमले में किस तरह इस्तेमाल हुआ है उसको हम कहते हैं आराब। हालांकि उसकी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, तर्जुमे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मगर शक्लें तब्दील हो सकती हैं। अगर शक्लें तब्दीली ना हुई, यानी आप शक्ल तो नहीं पाएंगे तब्दील हुई, मगर वो आ, रफा नस्ब जर में होगा, तो ऐसे इसम को हम मबनी इसम कहते हैं। और जो हमने पहले पढ़ा मूसा ईसा। और अगर तब्दील होती है शक्लें रफा नस्ब जर में, उनको हम कहते हैं मुअर्रब अस्मा। मुअर्रब में फिर हमारे पास मुनसरिफ अस्मा है जिनमें तीन शक्लें तीन अराबी कंडीशन में तब्दील होती है। और वो 85% हमारे पास जो भी ग्रामर है वो अस्मा आते हैं। उसके बाद गैर मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा है जो मुअर्रब अस्मा की दूसरी किस्म है, जिसमें दो शक्लें तब्दील होती है, रफा में अलग और नस्ब जर में अलग। और इसमें दो पेश दो जबर दो जेर के बजाय पेश जबर इस्तेमाल होता है, जेर इस्तेमाल नहीं होता। और ये अस्मा अक्सर इसमें अलम के होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है, अगर छोटा लेक्चर है मगर ये बहुत ही वाजिया और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर कोई सवाल मुनीर साहब या यानी जो हमारे दूसरे साथी है शौकत साहब, या बहन हमारी साथ है आलिया, अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप सवाल पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के हिसाब से। क्योंकि बहन आलिया जो है वो आज पहली दफ़ा यानी लेक्चर में हाजिर हुई है, तो उसको थोड़ा सा ये ना लगे कि हम कुछ अजीब चीज़ें पढ़ रही हैं। तो अगर आप पांचवें लेक्चर यानी जो हमारा पिछला दरस होगा उसको अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। क्योंकि ये हमारा छठा लेक्चर है, तो अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ये उसी के मुताबिक है। कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास अभी वक्त है कोई सवाल ले सकते हैं, अगर कोई जी सर, सवाल एक नहीं तो। रिक्वेस्ट है जो जी जी शौकत साहब। जी सर, रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने पिछले क्लास दिया था उसमें आपने थोड़ा मुझे लगा लंबा क्लास देते आप, लेकिन कम टाइम में यानी स्पीड तेज होती है। नहीं, आप एक बात कर लें, तो इसीलिए तो लास्ट इसीलिए तो उसमें ये फायदा है कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ बैठने का ये फायदा होता है कि आप मेरी बातों को मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर उसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे, उसके नोट्स आपके पास कलम कागज ना हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता मैं है। सर मैं दूसरी साथ बात। साथ वो रिकॉर्ड करता हूँ लिखता हूँ, लेकिन
اس میں آج ہم نے مطلب آپ نے کلاس کے آخر میں آپ نے ریوائز کیا، اس طرح ہاں تھوڑا اگر اس طرح اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نہیں کلاس انشاءاللہ کے اینڈ میں دو وہ منٹ ہم کریں گے، کیونکہ دیکھیں اعراب کا جو ٹاپک ہے نا، اعراب کا جو پہلا ٹاپک ہم نے لیا تھا اس میں مطلب آدھے گھنٹے میں وہ صحیح بات ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے اس کے مقابلے میں۔ مگر آپ اس کو جو ہم یعنی جو میں اس کے بعد یوٹیوب پہ اس کو ڈال دیتا ہوں ویڈیو کو اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پلیز اس کو آپ دھیرے دھیرے کر کے مطلب دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا جو یعنی لیکچر سیریز ہے یہ مطلب رمضان کے بعد تک چلے گا، 50 لیکچرز کمپلیٹ کرنے ہیں اور ابھی ہم 6 لیکچر پہ ہی ہے، تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو گئے اس میں، تو امید ہوگی کہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں تھوڑا سا ہم آہستہ کریں گے، دھیمے طریقے سے کریں گے۔ مگر اگر ہم اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے جو پچھلا درس ہے، پچھلا لیکچر ہے، تو پھر اگلے لیکچر میں پھر سے اس کو پڑھنا پڑتا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے جگہ ٹھہرے کہ جب ہم دوسرا درس شروع کریں نا تو کم از کم مطلب ایسا ہو کہ ہم نے پیچھے کہیں ایسے مقام پہ ہم نے وقف کیا کہ آگے بڑھے تو پیچھے والا اس کی ضرورت نہ پڑے۔ حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر درس میں پچھلے والے درس کے کچھ مطلب ریکیپس آپ کو دوں تاکہ آپ جڑ پائیں۔ مگر اگر پھر بھی کوئی چیز مس ہو تو پلیز آپ جو یوٹیوب پہ یہ جو لیکچر آتا ہے اس کے بعد ابھی انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں یوٹیوب پہ آ جائے گا، آپ کیا کریں، آپ کاغذ قلم نوٹ کر کے، کیونکہ جب تک آپ کاغذ قلم نوٹ نہیں کریں گے پھر آپ کو جتنے بھی سوالات آتے ہیں نا ان سوالات کو اگلے درس میں آپ پہلے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم درس ابتدا کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، ایسے ہم کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گئے؟ ٹھیک ہے سر، اوکے سر۔ چلیے جزاک اللہ، یہاں پر ہم اینڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ اگلے درس میں ملیں گے شکریہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔